Hi guys and welcome back to my channel. First of all, I'm very sorry for being inconsistent. Last 2-3 महीने से I'm not able to upload videos. There were reasons. LLM happened. So yesterday I uploaded this reel and the response was crazy. So there are people who have sent me a lot of queries and I'm making this video for them because I realize that there are people who need guidance, who need to know that how this field works. और क्या मतलब बस डिग्री लेके काम चल जाएगा क्या, नौकरी मिल जाएगी क्या? सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू डील टुडे. So yeah, let's get started with the question and answer video. So I have like shortlisted around 10 queries which were very popular and like which was very frequently asked. So I will be addressing them one by one. The first question was, is law a good career? Will I regret opting this? Okay, so it has been 6 years that I am into this field now. And okay, so law as a career, choose law very wisely. To be very honest, if you're a first generation lawyer, it may be difficult for you to sustain in this field because first you lack a lot of guidance. So basically law may you have three options. The first one is you can go for government services, the second option is for litigation, and the third one is for corporate, right? So in litigation, if you want to go, you will need a lot of connection, a lot of reference. So I would suggest that अगर आपके पास इतना टाइम है, if you have that much of patience, you are very much hardworking, very much dedicated, and very much want to excel in this field, and you have around 5 to 6 good years that you can invest in this field, this practice field or litigation field, without like thinking about कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे. You're just focusing on learning. You are a very focused learner और आप में उतना patience है. Go for litigation. Litigation is made for you. But again, I'm talking if I'm talking to a like second generation or third generation lawyers के लिए things becomes easier because of course उनके घर में कोई होता है जिनके पास connections होते हैं. So if you want to go into litigation, बहुत patience की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा. Of course, it will make you a very better person, very strong person, no doubt in that. But again, think wisely before you choose litigation, especially if you are a first generation lawyer. Say if you want to go for judiciary, and अभी तो आपको पता है there is a recent judgment where the Supreme Court has held that 3 years का experience ज़रूरी है, right? पहले ये नहीं था, अब इन्होंने इसको भी ले आया है. तो again 3 years experience is anyway required if you want to go for judiciary. Talking about other government exams, again when in law vacancies नहीं आती हैं ज़्यादा, you will have to wait for your turn to come. You will have to be very very much hard working because आती भी हैं तो एक PSU में मान लो 10 वैकेंसीज आती है, 12 वैकेंसीज आती है एक साल में, और कभी कभी तो आती भी नहीं है. when I'm talking about PSUs, सेबी comes up with vacancies, but again वैकेंसीज बहुत नहीं होती है, frequent वैकेंसीज होती हैं बट हमेशा नहीं होती है, सीट्स कम होते हैं. अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट RBI, तो वहाँ पे तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस एनीवे चाहिए. सो द सेकेंड ऑप्शन इज दिस एंड द थर्ड ऑप्शन इज अकेडमिया. सो आई हैव चोजन अकेडमिया फॉर माई सेल्फ. द रीज़न बीइंग, फर्स्ट आई एम फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मेरे घर पे कोई भी लॉयर नहीं है. सो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज ऑप्टिंग लॉ. आई लाइक एवरीबडी इन माई फैमिली राइट नाउ इज क्लूलेस कि व्हाट आई विल डू नेक्स्ट. इवन आई एम क्लूलेस दैट व्हाट आई वांट टू डू. सो वो तो मेरा प्रॉब्लम है. डोंट मेक माई प्रॉब्लम योर प्रॉब्लम्स. So when I'm talking about academia, so this is the reason I opted for PG. वरना post graduate मत करो if you want to go into corporate or something, because उसका उतना कुछ value होता नहीं है. Anyway, we will talk about this corporate thing. There is one more query related to it. In that we'll discuss about corporate. And again for PG also, so I appeared for CLAT PG 2025 and my rank was 206. So I was very much lucky to get NALSAR. But again, if you're appearing for this CLAT PG and then you are doing PG, उसके बाद भी let me tell you one thing, आप ऐसे टीचर नहीं बन सकते हो. मे बी स्मॉल कॉलेजेस डू एक्सेप्ट बट UGC देना ज़रूरी है. लाइक मैनी कॉलेजेस टेक टीचर्स जो कि मतलब नहीं होता है UGC उनका नहीं, अगर नहीं भी होता है तो दे टेक इट. But still you will have to appear for UGC. You will have to qualify that exam for a better future. Then the last one is corporate. So for corporate, I would say कि corporate only works on your CV and your skills. If you have developed those in your 5 year of law school, then go for it. You are made for it. And again in law, corporate is also not easy because आजकल ये ट्रेंड होता है कि हाँ गवर्नमेंट एग्जाम्स तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, सो पीपल जो कुछ नहीं करते हैं वो प्राइवेट चले जाते हैं.
It's not the case. Even in when we are talking about corporate, it's like it's very tough to crack into a good company, especially from for people who are coming from a very average college. And then we will be discussing about how the tag will matter when it comes to corporate firms, right? Sorry, law firms. So overall, if I say law as a career, आपके पास 3 चीज़ तो होनी चाहिए. फर्स्ट, यू विल हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. सेकेंड, हार्ड वर्किंग हो आप तभी जाओ लॉ के लिए. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कंसिस्टेंसी. अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, थिंक अबाउट इट ट्वाइस, मत आओ लॉ में. बिकॉज लॉ इज़ समथिंग विच लाइक यू विल हैव टू बी अपडेटेड. आप ये नहीं सोच सकते कि आज मैंने अगर 4 बुक्स पढ़ लिया तो कल मुझे फिर उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है. देयर आर अमेंडमेंट्स विच कम यार. हर एक महीने में नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं. हर एक कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है. नाउ वी हैव द न्यू क्रिमिनल लॉज विच वी आर डीलिंग विद, एंड एवरी लॉयर विल रिलेट अभी स्पेशली फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी ट्रांजिशन ईयर. जैसे कि हम सारे ट्रांजिशन ईयर के बैच वाले लोग हैं, 2025 बैच वाले लोग. तो हमें बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अभी. इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर सम कॉम्पिटिशन, वी आर इन बिटवीन कि क्या पढ़े. IPC पढ़ना है, BNS पढ़ना है, CRPC करना है, BNSS करना है. सो जस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर एंटरिंग इन टू लॉ. इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज इफ़ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, इफ़ यू डोंट हैव मनी. सिंपल एज दैट. ये 2 चीज़ नहीं है. एंड या ऑफ कोर्स इफ़ यू आर नॉट दैट हार्ड वर्किंग, अगर आप नहीं हो हार्ड वर्किंग, मत आओ लॉ में. इवन इफ़ यू हैव अ वेरी गुड ब्रेन, आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा. बिकॉज थिंग्स डज नॉट वर्क लाइक दैट. यहाँ आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है. 5 ईयर लॉ कॉलेज का आपको बहुत पढ़ना पड़ता है. एंड इफ़ एनी बडी इज सेइंग यू कि कम टू लॉ एंड जस्ट टेक अ डिग्री एंड आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगी. बट वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि देयर आर मेनी कंपनीज विल हायर यू, मास रिक्रूटमेंट्स होते हैं, लॉ से रिलेटेड नौकरी नहीं होती है. दिस इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट रिव्यू आई कैन गिव ऑन दिस करियर. इफ़ यू हैव दीज थ्री थिंग्स, पैसा, हार्ड वर्किंग हो, पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, कम इन टू लॉ नहीं है, ड्रॉप द प्लान, डोंट कम. अगर पढ़ाई का अगर आप में ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि यू कैन स्टडी लाइक अ लॉट. सो बेसिकली जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ, हाउ डू वी स्टडी. सो ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ सेमेस्टर के टाइम पढ़ो एंड देन पास योर एग्जाम्स. इट्स नॉट लाइक दैट. इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड इन लॉ, थ्रू आउट योर लाइफ विल हैव टू स्टडी. अगर आपके पास नौकरी है, नहीं है, डजेंट मैटर. नौकरी हो भी जा रही है तो भी आपको खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा. इट्स नॉट अ फील्ड जहाँ पे आप नहीं पढ़ो. यू विल हैव टू वर्क हार्ड. बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है इस फील्ड में. सो दिस फील्ड इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज. ऑल्सो दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर पीपल हु आर सेंसिटिव. जिनका बहुत सेंसिटिव माइंड सेट है, दिस फील्ड इज़ नॉट मेड फॉर यू. सो थिंक ट्वाइस. These were the like I'll tell you these are the disadvantages to be very honest. But again, लॉ में बहुत डाइवर्सिटी भी है. इफ़ आई से कि लॉ में सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता कि यू जस्ट गो इन टू कॉर्पोरेट. अगेन देर आर मैनी ऑप्शंस. वंस यू एक्सेल इन योर फील्ड, तो आपको अगर मज़ा आने लगेगा तो पैसा तो भाई बहुत है. लिटिगेशन में इफ़ यू लाइक प्रैक्टिस वेल एंड यू आर लाइक वेरी आपने बहुत ज़्यादा अपस्किलिंग कर लिया है, तो डेफिनेटली यू विल गेट मनी. और इफ़ यू क्रैक अ गुड गवर्नमेंट एग्जाम, ऑफ कोर्स आपका पूरा लाइफ सिक्योर हो जाता है. बट अगैन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो लॉ इज़ फॉर हार्ड वर्कर. सो इफ़ यू आर चूजिंग लॉ, बी वेरी माइंडफुल. या तो आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, या तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और आप में है पोटेंशियल, आप में है कैपेबिलिटी, दैट यू कैन डू इट. सो दिस वॉज माई आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट वेदर लाइक यू शुड चूज़ लॉ एज योर करियर और नॉट. तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हो, गो फॉर लॉ. नहीं कर सकते हो, ड्रॉप द प्लान यार. द सेकेंड वन इज़, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है 5 साल आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो या फिर आप 3 साल ग्रेजुएशन करते हो फिर 3 साल लॉ के लिए जाते हो. इट्स वेस्ट ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स इन लॉ स्कूल, स्पेशली इन फर्स्ट सेमेस्टर. ओके, सो आई विल बी टॉकिंग टू द लिलीपुट्स नाउ. फर्स्ट सेमेस्टर वाले लोग, ओके, सो फर्स्ट सेमेस्टर इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर यू. आई एम अज्यूमिंग कि आपके अगर आप BA LLB कर रहे हो, देन आपके वही हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह के पेपर्स ज़्यादा होते हैं. हिंदू लॉ होता होगा और कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे में होता था बेसिकली. सो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आई विल सजेस्ट यू दैट स्टार्ट लर्निंग की चीज़ों को मेमोराइज कैसे करना होता है. बिकॉज लॉ रिवॉल्व्स अराउंड दिस मेमोराइजेशन थिंग. इफ़ यू हैव गुड मेमोराइजिंग स्किल्स, अगर आप ये कर सकते हो, देन ऑफकोर्स यू विल गेट गुड मार्क्स. ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग
नोट्स इज़ द की, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स. बहुत लोग, आई हैव सीन दैट पीपल यूज टू जस्ट मार्क ऑन द बुक्स और द बेयर एक्ट्स एंड देन दे यूज टू सिट इन द एग्जाम. I don't prefer that because writing helps you learn a lot of things, and if you start making notes, वो आगे आने वाले टाइम पे that will help you only because after 5 years of your law school you realize कि ये सारे जो भी मैंने पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं. अगर आप अकेडमिया में जा रहे हो वहाँ पे पूछा जा रहा है. For that matter, even if you're going into corporate, I don't have any idea about the interviews whatever they go through, but definitely corporate subject से तो questions आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आपका कंपनी हो गया, बैंकिंग हो गया. सो इफ़ यू हैव गुड नोट्स तो आपके पास वो बैकअप रहता है. एंड ऑल्सो आपके पास खुद का स्टडी मटेरियल होता है, बिकॉज यार एट द एंड ऑफ द डे ये जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं दे आर जस्ट गिविंग यू वही स्टडी मटेरियल ही दे रहे हैं वो आपको. सो इट्स बेटर दैट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ योर लॉ स्कूल यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स, और उन सारे नोट्स को प्रिजर्व करो. ये 5 years के बाद यू विल रियलाइज़ कि ओके, आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज़. सो 5 years के बाद यू विल रियलाइज़ कि ये नोट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड फॉर एवरी एग्ज़ाम आपको हेल्प होगा. ऑल्सो आप जब पीछे के लॉस छोड़ के आगे के लॉस पढ़ोगे, रिलेट जब करोगे तो भी उस टाइम पे भी बहुत हेल्प होता है. सो फॉर फर्स्ट सेमेस्टर पीपल जस्ट स्टार्ट लाइक नो हाउ टू स्टडी लो. पहले आप वो उस पर ध्यान दो कि कैसे नोट्स बनाना है, कैसे पॉइंटर्स बनाने हैं, एंड देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड रटना शुरू करो. रटने के अलावा लॉ में कोई ऑप्शन नहीं होता. रटना तो पड़ेगा, याद तो रखना पड़ता है, सिंपल एज दैट. और फर्स्ट ईयर में हो यार तो उतना स्ट्रेस मत लो, बट हाँ सेकेंड थर्ड ईयर से लेने लगना ऑफकोर्स. द थर्ड इज़ प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी. नो, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी. The fourth question was, what are you doing after PG? Plans for LLM, from which specialization? And what are you doing in LLM, like LLM in corporate, and what is the scope? Okay, so yes, so I'm doing masters in corporate. इसमें हमारे सिर्फ लाइक सेबी के सारे रेगुलेशंस पढ़ाते हैं, एंड मोस्टली पीजी प्रोग्राम इज़ मोस्टली बिल्ड लाइक कि आप खुद से जितना पढ़ सको. लाइक अब यू आर नॉट इन दैट स्टेज दैट द टीचर विल कम एंड स्पून फीड यू, सिंपल एज दैट. एंड सिर्फ यार what I feel is कि scope, when I talk about LLM and then I talk about doing specialization in corporate and then I say what is the scope is simple, academia. For me, I have chosen academia, hence I am doing PG. For people who want to go into corporate, so I have not chosen corporate because I want to join a firm. I have chosen a PG because I want to get into teaching. I want to do academia wala thing. So when I talk about scope of LLM in corporate आफ्टर पीजी, नो सच स्कोप. ये मत सोचना कि आप पीजी कर लोगे तो आपको एक एज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. जो 5 साल वाले बच्चे निकल रहे हैं लाइक पढ़ के जो निकल रहे हैं उनका ज़्यादा बोलबाला है इन कॉर्पोरेट फर्म्स, बिकॉज दे ऑल्सो थिंक कि वाई टू इन्वेस्ट इन पीपल हु आर जस्ट स्पेंडिंग 1 year ऑफ देयर लॉ कॉलेज NLUs में, राइट. सो जो 5 साल पढ़ के आ रहे हैं उनको वो लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ऑल्सो जो ये 5 साल वाले लोग होते हैं ना, ये एकदम ही रिसेंटली अपस्किल्ड होते हैं. एंड व्हेन यू आर डूइंग पीजी, ये समझो ये चीज़ कि व्हेन यू आर डूइंग पीजी आपका कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग रहा है. यू आर नॉट दैट मच अपडेटेड, यू आर जस्ट अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द बुक्स व्हाटएवर इज कमिंग ओवर देयर. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट फर्म्स, मैंने कभी नहीं देखा कि वो LLM वाले को मतलब देते होंगे, ऐसा नहीं है, वो भी प्रेफर करते होंगे. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर CV कि आपने अपने आप पे कितना काम किया था 5 साल. ऑल्सो LLM के टाइम पे भी यू एक्टिव इन द कॉर्पोरेट फील्ड और नॉट, डूइंग इंटर्नशिप्स और नॉट, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन योर CV. इट्स लाइक PG के डिग्री से LLM के उससे कुछ भी वैसा कुछ खास एज होता नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, does NLU or college tag matters? Some say college does not matter and skills. Okay, so honestly speaking, when we are talking about tag, it does matter. ये अगर कोई भी बोलता है आपको कि टैग मैटर नहीं करता है, डोंट ट्रस्ट देम. आई विल टेल यू द रीज़न वाई टैग मैटर्स. सो NLU का जो करिकुलम होता है ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, इट्स वेरी हेक्टिक. वहाँ के लोग ना स्ट्रेस में सांस भी ले रहे होते हैं. they do have a life, of course they have a balance, people do balance things, but the curriculum of NLUs are very hectic. I'm talking about the अभी टॉप का NLUs. वहाँ के curriculum is very hectic. ऑल्सो उनका ना थोड़ा अलग ही चलता है. सो दे आर वेरी मल्टीटास्किंग पीपल. उनका बस ऐसा नहीं होता कि बुक खोल के बैठ गए, पढ़ लिया, सेमेस्टर पास कर लिया, हो गया. नहीं, उनका ऐसा नहीं होता. They have many different kind of projects, assignments, activities, opportunities. So when we are talking about tag, तुम अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो कि
why corporate firm will hire a person who is coming from an NLU background, because they are going through a lot of grill. उनके 5 साल में उनको इतना ग्रिल करा देते हैं ना कि उनको मतलब उनको जितना जानना चाहिए उससे ज़्यादा वो जानने लगते हैं. They know how to work under pressure. So of course when we are talking about NLUs, when we are talking about tag does matter. And again the other question was, some say skills do matter, tag does not. Okay, so very honestly स्किल्स मैटर करते हैं. व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम एन एवरेज कॉलेज, वहाँ पे क्या होता है ना, आपको खुद से सब कुछ करना पड़ता है. डीन को मनाना कि परमिशन चाहिए, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल थिंग, आपको खुद के पॉकेट से पैसे लगाने पड़ते हैं. बहुत कम कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको रिइम्बर्स करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट NLUs, वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है, प्लस दे हैव अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बैकअप. उनके लिए हर चीज़ के लिए कॉलेज रिइम्बर्समेंट देती है. दे हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और कॉलेज वाले भी काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं. ऑल्सो अपस्किलिंग की बात है तो इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू कि हाउ यू आर डूइंग थिंग्स. ये पहली चीज़. सेकेंड चीज़, आपकी जब CV बनती है ना, एंड व्हेन यू लाइक पुट देयर कि आप कौन से कॉलेज से हो, तो वहाँ पे कॉलेज के बेसिस पे ही ना पहले आपको हटा देते हैं. इफ़ यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम NLU, मोस्टली आपके CV को साइड कर दिया जाता है. अभी मोस्टली यही ट्रेंड चल रहा है. और आने वाले, आई डोंट थिंक सो, अभी आने वाले 5-6 साल में यही ट्रेंड होगा कि मतलब NLU वालों को तो देते ही हैं प्रायोरिटी, नो डाउट. बट आई एम नॉट सेइंग कि जो एवरेज कॉलेज वाले हैं उनको गुड कॉर्पोरेट फर्म्स में नहीं मतलब हायर करते हैं ज़रूर करते हैं. बट अगैन इट डिपेंड्स कि आपने अपने पे कितना मेहनत किया वो 5 साल में. अगर इंटर्नशिप्स नहीं करे, पब्लिकेशंस नहीं किया, दे डिडंट अटेंड एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप, एनी सेमिनार्स, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 5 ईयर्स के एंड में कॉर्पोरेट फर्म्स उनको हायर करें. वहाँ पे वो ये नहीं बोल सकते कि यार आप NLU को ले लो, दैट इज़ लाइक नथिंग. वो डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं. आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम इन नालसार, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा 1 ही साल का कोर्स है. आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ वेरी एवरेज कॉलेज. आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड हियर, बट दे डिज़र्व दैट थिंग. ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है UG के टाइम पे भी, एंड वो अंदर जाके भी बहुत मेहनत करते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रैकिंग अ कॉम्पिटिशन, इट्स ऑल्सो अबाउट सर्वाइविंग इन दैट कॉलेज, बिकॉज बहुत प्रेशर होता है. आई हैव सीन दैट, आई हैव फेल्ट दैट. लास्ट 4 मंथ से आई हैव ऑल्सो सीन थिंग्स. सो इट्स नथिंग लाइक दैट कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है. बट हाँ, आपको अपने अपस्किलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा 5 साल अपने पे मेहनत करना पड़ेगा. इफ़ यू नीड समथिंग, 5 ईयर्स विल बी लाइक, इफ़ यू वांट टू गो इनटू कॉर्पोरेट, 5 ईयर्स आपको ऐसा होना चाहिए कि आप हर इंटर्नशिप ब्रेक पे यू आर लाइक गेटिंग अ गुड इंटर्नशिप, यू आर मेकिंग पब्लिकेशंस, आप वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अपस्किलिंग मैटर्स, बट उस चीज़ के लिए अगैन आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा. द कॉलेज विल हैव नो रोल टू प्ले व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम एन एवरेज कॉलेज. NLUs में आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे देते हैं और मिल भी जाती है बहुत. उनका प्लेसमेंट सेल्स वगैरह एक्सेट्रा बहुत एक्टिव होता है. उनके खुद के जो बच्चे भी होते हैं, दे आर वेरी मच एक्टिव. एंड ऑल्सो कनेक्शंस आपके, अगर आप यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज, आपके कनेक्शंस ऐसे ही बन जाते हैं. उसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लगता नहीं है. नेक्स्ट इज़ doing law from an average college, want to go for corporate, guide me please. Okay, so if you are doing law from an average college and you want to go into corporate, same thing, वही upskilling वाली बात है. यहाँ पे आप जितना खुद पे मेहनत करोगे, कॉर्पोरेट में जाना है, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बस एक रूम में बैठ के बुक्स पढ़ते रहूँगी, एग्ज़ाम में मार्क्स लाते रहूँगी. और कॉर्पोरेट में आपको बहुत ज़्यादा CGPA पे फोकस भी नहीं करते हैं. एक नॉमिनल, अगर आपका CGPA 8.5 से लेके 9 तक भी मेंटेन्ड है तो चलता है. अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, देन start doing internships, publications and workshops attend करो, webinars, connections बनाओ. basically LinkedIn, again I will suggest LinkedIn है. अगर you are good in making connections, make as much connections as you can and make useful connections. again I'll not say कि आप सबसे connection request भेज दो. select your domain, जहाँ पे भी जाना है. corporate में भी different चीज़ें होती हैं. if you want to go there, then target people accordingly. लिंक्डइन पे फ्रीक्वेंटली पोस्ट करो. जस्ट बी वेरी एक्टिव, जितना एक्टिव हो सकते हो. जितना आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक्टिव नहीं होते, उससे ज़्यादा आपको लिंक्डइन पे एक्टिव होना पड़ता है. नेक्स्ट इज, okay, so I have appeared in CLAT PG. What to do next? Should I opt PG from a private college? Is that a good option? Okay, so when I'm talking about PG thing and opting it from a private college, I don't think so it's a very good option until unless you are very rich. And अगर आपको सिर्फ फॉर द लाइक नेम से यू नीड अ डिग्री, आप ऐसे नॉर्मल कॉलेज से भी, मतलब ऐसे अगर आपके स्टेट में कोई ऐसा कॉलेज है जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, यू कैन गो, लेकिन यू कैन टेक अ डिग्री फ्रॉम देयर एज वेल. बट प्राइवेट कॉलेज से PG करना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन.
एक तो आपके सीवी को भी बहुत हेल्प करेगा नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा नाम दिखेगा नहीं, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। इफ़ यू जस्ट, आपको बस 1 साल का या 2 साल का वो चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, और जस्ट यू वांट अ डिग्री साइड बाय साइड, टेक इट। ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी। ओके, सो एक टिप देना था फॉर पीपल हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी। थिंक वाई यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी फर्स्ट, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो क्लैट पीजी देने के बाद, इवन इफ दे आर गेटिंग अ गुड रैंक, दे डोंट नो वाई दे आर ऑप्टिंग फॉर, लाइक दे आर कमिंग फॉर पीजी। पीजी तभी करो व्हेन यू वांट टू गो इनटू एकेडमिया, या फिर आपको अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। आई विल नॉट से इवन दैट, बिकॉज अगेन जो टॉप 3 एनएलयूज होते हैं उनका करिकुलम बड़ा हेक्टिक होता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल जिनको मल्टीटास्किंग की आदत नहीं होती है। दे के नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। मेरे से तो नहीं होता है, बट अगेन देर आर पीपल हु कैन ऑल्सो मैनेज। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नालसार, वहाँ का रिसर्च जो होता है वो काफ़ी हेक्टिक होता है, सो यू आर लाइक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेरे जैसे एवरेज लोगों को करनी पड़ती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर पीपल, दे मे बी लाइक डूइंग इट वेरी ईजली, बट आई हैव सीन मी, माई फ्रेंड्स एंड माई रूममेट स्ट्रगलिंग विद दिस रिसर्च थिंग, बिकॉज फैकल्टीज आर स्ट्रिक्ट और उनको काफ़ी परफेक्शन चाहिए होता है। एनीवे, दैट्स अ गुड थिंग ऑल टुगेदर, बट वही है कि इफ़ यू वांट टू कम इनटू पीजी, थिंक ट्वाइस क्यों आना है। डोंट कम टू पीजी बिकॉज यू वांट टू गो टू कॉर्पोरेट आप ऐसे भी जा सकते हो। बेटर ऑप्शन ये होगा कि पीजी से अच्छा है कॉर्पोरेट में, लाइक कॉर्पोरेट के लिए इंटर्नशिप्स कर लो 1 साल या 2 साल, आपको अच्छे ऐसे ही कंपनीज मिल जाएगी, स्टार्ट फ्रॉम लो, कोई टेंशन नहीं है, चिल है। बट अगेन वही पीजी करना है तो जस्ट कम फॉर पीजी, बिकॉज अकेडमिया में अच्छा स्कोप मिल जाता है आपको ऐसे। और वही है कि अकेडमिया में तो बिना पीजी के लेते भी नहीं है, ऐसे नौकरी तो कोई देता नहीं है। ऑल्सो यूजीसी में भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, बिकॉज अगेन यू आर लर्निंग अबाउट रिसर्च मेथडोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें भी हेल्प हो जाती है। But if you want to go into corporate, PG is not a good option. I will not suggest you just thinking कि NLU का tag मिल जाएगा and then I'll get into corporate. It's not like that. It doesn't work like that. Again, आपके skills matter करेंगे वहाँ पे. If you are coming from, अगर आपका graduation भी NLU से है, then you are doing post grad from NLU, then that is a different thing. 5 years कोर्स मैटर्स, आप कहाँ से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप किसी भी रैंडम कॉलेज से अगर 5 years कोर्स कर लेते हो बैठे बैठे, एंड देन यू एक्सपेक्ट अ गुड प्लेसमेंट, नहीं होता यार ऐसा, ये सब नहीं होता है। यहाँ लोगों में फालतू चीज़ें ये सब बस ऐसे ही बोल देते हैं लोग कि कर लो हो जाएगा, नहीं होता भाई। नेक्स्ट इज या सो वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी। ओके, सो फॉर मी क्लैट पीजी वॉज अ काइंड ऑफ जर्नी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, और फिर एग्ज़ाम देने के बाद आई रियलाइज़ कि इतना भी मेहनत नहीं करना होता है, बट एनीवे अब तो कर लिया। सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, खुद से पहले सेल्फ स्टडी किया। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस क्या था, पहले देखो कि सिलेबस में क्या है, चेंजेस क्या क्या आ रही हैं। हमारे टाइम तो बहुत ही ज़्यादा, अभी लास्ट ईयर तो बड़ा डिस्प्यूट हो गया था, मैं तो वैसे रिजल्ट को भी चैलेंज करके ऐसे स्टे लगा दिया था 6-7 महीने के लिए। सो फर्स्ट वही है, 5 years का जितना भी आपने पढ़ा है पहले उसको रिवाइज़ करो, स्टार्ट रिवाइजिंग। मैंने बोला था ना कि फर्स्ट ईयर में जो नोट्स बना रहे हो वो 5 years के बाद समझ आता है कि किस लिए बनाया था। अब आपको यहाँ पे रियलाइज़ होगा कि उस नोट्स का कितना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज लैंडमार्क जजमेंट्स चेंज नहीं होते। हर एक पेपर में दे आर गोइंग टू आस्क, लॉ पेपर्स में वो पूछते ही है लैंडमार्क जजमेंट। स्टार्ट रिवाइजिंग फर्स्ट। अगेन सॉल्विंग क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, मॉक नहीं दे रहे हो, तो फिर डिफ़िकल्ट है, बिकॉज मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई यूज़ टू गिव 1 mock ईच। अगस्त के बाद से दिसंबर में एग्ज़ाम होता है ना, अगस्त से आई स्टार्टेड गिविंग 1 mock एक दिन में। ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ योर लॉ स्कूल, इफ़ यू वांट टू गो फॉर पीजी ना, या फिर अगर आपको ऐसी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, नो हाउ टू रीड केस लॉज। बहुत लोगों को नहीं आता है कि केस लॉज कैसे रीड करते हैं। फोकस ऑन दैट, केस लॉज कैसे रीड करते हैं। सो इफ़ यू आर जस्ट रीडिंग 1 केस लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशन का ना, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इन्वायरमेंटल लॉ, मतलब 3-4 चीज़ें से कनेक्ट हो जाती है। एंड देन थिंग्स लाइक वो एक ना सर्कल में चलते रहता है। अगर आप एक केस लॉ पढ़ रहे हो, फिर आप दूसरे दिन दूसरा केस लॉ पढ़ रहे हो, तो आपके ना वो पूरा रिविजन होते रहता है। सो जस्ट नो हाउ टू रीड केस लॉज फॉर क्लैट पीजी। आई एम टेलिंग राइट नाउ, रिवाइज योर नोट्स, केस लॉज पढ़ने की आदत डालो। एंड द थर्ड थिंग, अब आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे। फॉर क्लैट पीजी देयर इज नथिंग न्यू यू विल रीड, यू विल जस्ट रिवाइज वॉट एवर यू हैव रेड ऑलरेडी इन योर 5 years ऑफ लॉ स्कूल। आपको बस वही पढ़ना है। स्टे अपडेटेड, लीगल अवेयरनेस इज़ वेरी नेसेसरी।
आपको हमेशा वो होना चाहिए कि आपके लास्ट 10 ईयर्स या लास्ट 5 ईयर्स में कौन कौन से ऐसे केसेस आए हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है सोसाइटी पे। ऐसे कुछ भी केसेस नहीं पढ़ना होता है जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। मान लो न्यूज़ में अभी तो सोशल मीडिया इज़ लाइक वे टू फॉरवर्ड, अभी तो हर चीज़ ऐसे सोशल मीडिया पे आ जाती है। बट अगैन क्लैट पीजी के टाइम पे सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज़ करना व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। एंड दैट्स इट यार, गिव मॉक्स, हो गया, बस इतना ही करना होता है पीजी के लिए। क्लैट पीजी के लिए ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता। लास्ट ईयर तो 10,000 बच्चे ही बैठे थे, हो जाएगा। बस इतना करो, कंसिस्टेंट रहो, दैट्स इट। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचो कि आप ऐसे बस कुछ भी पढ़ लिया ऐसे एक हफ्ते पहले और दे दिया तो हो जाएगा। एंड उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंट भी मत हो ना, बिकॉज आपने मेहनत नहीं करी अगर आप सिर्फ एक वीक पहले पढ़ना शुरू कर रहे हो तो। आई एम ऑलरेडी टॉकिंग लाइक अ टीचर गाइज, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट इज़ गुड प्राइवेट कॉलेज इन बजट। ओके, बजट, व्हाट इज़ योर बजट फर्स्ट। पहले तो बजट डिसाइड करो, बजट होता क्या है। मेरा पूरा 5 साल का लॉ कोर्स का फीस 10 लाख में हो गया, अकोमोडेशन मिला के। सो पहले फर्स्ट डिसाइड योर बजट। सो व्हेन आई जस्ट गिव अ टिप, फ्री टिप, फिर से फ्री एडवाइस। सो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस पीपल कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू चूज़ अ प्राइवेट लॉ कॉलेज फॉर योर सेल्फ, कुछ चीज़ें हैं ना जो दिमाग में रखना। एंड ये चीज़ें ना हमें बताने वाला कोई नहीं था। एंड जब मैंने किया था, जब मैंने सोचा था कि मुझे लॉ करना है, एंड आई ऑल्सो अपेयर्ड फॉर क्लैट यूजी जिसमें मेरा अच्छा रैंक नहीं आया था, इट वॉज 5,000 समथिंग। तो और मेरे को नहीं मिला था, ठीक है, जनरल को नहीं मिला था। सो व्हेन आई वॉज डिसाइडिंग फॉर कॉलेजेस, तो मेरे घर वाले ने बोला था कि ग्रेजुएशन में इतना पैसा क्यों लगाना है तुमको, गो फॉर इट यार, मतलब कोई भी कॉलेज में कर लो, ग्रेजुएशन में पैसा लगा के कोई फ़ायदा होता नहीं है, ऐसे भी तुमको पीजी करना ही पड़ेगा और ये जस्ट गो फॉर फर्दर स्टडीज़ एंड स्टफ। तो उस टाइम इतना दिमाग लगाया नहीं। अब मुझे कोई बताने वाला नहीं था, पर आई एम हियर फॉर यू गाइज। सो जस्ट कुछ चीज़ें दिमाग में रखना। द फर्स्ट थिंग इज़ लोकेशन। कॉलेज का लोकेशन बहुत मैटर करता है व्हेन यू आर लॉ फील्ड। बिकॉज आप ट्राई करना, या तो आप मुंबई जाओ या आप दिल्ली जाओ, ये 2 जगह की कॉलेजेस अगर आपको मिल रही है प्राइवेट में, इवन इफ़ वो एवरेज है चलेगा, क्योंकि वहाँ पे ना आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे आपके बहुत सारे कॉर्पोरेट फॉर्म्स होते हैं। सो ये 2 प्लेसेस को मोस्टली टारगेट करना व्हेन यू वांट टू गो इनटू कॉर्पोरेट एंड लॉ में जाना है तो, मतलब लॉ में अगर कॉर्पोरेट में जाना है तो ट्राई टू फोकस ऑन दीज 2 लोकेशंस पहले, कि मेरे को अगर कोई दिल्ली में मिल रहा है या फिर मेरे को अगर बॉम्बे में मिल रहा है। बिकॉज बॉम्बे में मोस्टली कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, सारे जितने भी कॉर्पोरेट फर्म्स अच्छे अच्छे वो बॉम्बे में ही है। अगैन दिल्ली तो यू नो जुडिशरी, मतलब वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ही है हमारा वहाँ पे। तो ये 2 चीज़ ध्यान में रखना कि लोकेशन चूज़ बड़ा वाइजली करना। कोई ऐसे अंदर का लोकेशन चूज़ मत करना, कोई सेंस नहीं बनता है अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी रिजिड विद योर थॉट्स कि मेरे को जुडिशरी ही करना है, आई जस्ट वांट टू गो इनटू कॉर्पोरेट सर्विस। अगर वो चीज़ है, गो फॉर इट किसी भी कॉलेज के लिए। फिर कॉलेज का कोई भी रोल नहीं होता है अबाउट दिस कि आई टेल यू कि क्यों, मतलब लोकेशन वाइज तो पहले सेलेक्ट कर लेना, लोकेशन वाइज तो देख ही लेना। सेकेंडली, बजट में अगर कॉलेजेस की बात करें तो आप उसी तरीके से डिसाइड करो कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है तो आपका कॉलेज कुछ बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। कॉर्पोरेट में जाना है तो अच्छे कॉलेजेस चूज़ करना, 2-3 तो मेरे मुंह पे ही है। जिंदल ऑफ कोर्स, अगेन थोड़ा क्या बहुत एक्सपेंसिव है, बट हाँ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे। सेकेंड इज़ निरमा। निरमा इज़ ऑल्सो गुड कॉलेज, मैंने सुना है उसके बारे में। ऑल्सो हैव 2 to 3 पीपल जो मेरे कनेक्शन में है निरमा से, एंड दे आर वेल प्लेस्ड। एंड द थर्ड वन वुड बी सिम्बॉयसिस। सिम्बॉयसिस इज़ ऑल्सो गुड कॉलेज फॉर लॉ, यू कैन गो देयर। बाकी और कॉलेजेस भी हैं, आई थिंक क्राइस्ट है एक, वो भी ठीक ठाक है, मतलब यू कैन गो देयर। बट अगैन इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर यू आर गेटिंग, राइट। सो प्राइवेट कॉलेज अगर चूज़ करना है, बजट के अंदर करना है, देखो बजट के अंदर कर रहे हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमको कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिलेगा जिसमें बहुत ही, अगर तुमको ऐसे 10-12 लाख के अंदर तुमको कॉलेजेस चाहिए तो ऐसा कॉलेज नहीं मिलेगा जहाँ पे बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। और वही है, फिर वही अपस्किलिंग वाली बात आ जाएगी। एंड इट्स लाइक द होल थिंग विल बी लाइक कि आपको खुद पे मेहनत करना ही है। तो अगर यू आर थिंकिंग कि मुझे एक ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ पे मेरे को प्लेसमेंट्स मिले, मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, थोड़ा पैसा तो लगाना पड़ेगा, ये फील्ड ही ऐसा है। नॉट गोना लाई, अभी नहीं लगा रहे हो, बाद में लगाना पड़ेगा। बाद में क्या करोगे, इंटर्नशिप्स करोगे, कम पैसे कमाओगे, घर से पैसे मंगवाओगे, सिंपल एज दैट। तो फिर वही है कि अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना है, लोकेशन देख के चले जाओ, फिर अपने आप पे मेहनत करो, वो तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, तुम लॉ में हो, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ बहुत गुड प्राइवेट कॉलेज में यही 3-4 नाम हैं जो ऑनेस्टली यही 3-4 कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे हैं। बाकी नीचे के कॉलेजेस के जितने भी लोग ऊपर आते हैं, फर्स्ट प्लेसमेंट उनका बहुत अच्छा नहीं लगता है अनटिल अनलेस कि वो 2nd-3rd जनरेशन से हैं, उनके काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं, या फिर उन्होंने खुद पे बहुत काम किया है 5 साल।
वॉज दिस इज़ बिट फ़नी, मेरे साथ केसेस चलते रहते हैं, तो कोई सजेशन चाहिए होगा तो मिल जाएगी। डिपेंड्स कि what you are dealing with. Also, not gonna promise because I'm also a very busy person, and I hope कि आपको और अच्छे lawyers भी मिल जाए. I'm not like I am not here for legal advice because of course एक legal advice देने में बहुत research और experience लगती है. Uh, it's not like कि आप बस पढ़ लो कुछ भी और ऐसे ही कुछ भी मुँह उठा के बोल दो because आपने law पढ़ा है. It's like you will have to be very selective with your words. So yeah, so this was it for today's video, and I think I've pretty much covered every aspect and every question. सो यस ओके, तो थोड़ा तो बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं तो मैंने तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया होगा आपको अभी तक. थोड़ा सा मोटिवेशन की बातें कर लेते हैं. ओके, सो लॉ इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग फील्ड. इफ़ यू हैव दैट लाइक यू हैव दैट लव फॉर लॉ ना, तो और जिनको तो मैथ्स, ओके थोड़ा बहुत तो मैथ्स इसमें भी चाहिए होता है व्हेन यू आर लर्निंग टैक्स लॉज, एंड जब आप कॉम्पिटिशन के लिए बैठते हो ये सेबी वेबी तो सारे मैथ्स पूछती हैं एग्जाम्स में. बट अगेन अगर आपको पसंद है, इफ़ यू आर लाइक यू लव टू रीड जजमेंट्स, बिकॉज होते हैं ऐसे लोग जिनको बहुत पसंद होता है और उनको लगता है कि ये छोड़ के वो कुछ नहीं पढ़ सकते, मेरे जैसे लोग, कि हाँ ठीक है मैथ्स नहीं बन रहा है, बस मर जाएंगे मैथ्स बनाते बनाते, बट लॉ ही पढ़ना है. तो इट्स नॉट अ बैड फील्ड, डेफिनेटली इट्स नॉट अ बैड फील्ड. इट इज़ नॉट एन ईजी फील्ड ईदर. सो आई एम नॉट टेलिंग दैट इट्स अ गुड फील्ड. आई एम जस्ट सेइंग कि इफ़ यू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क देन बहुत स्कोप है लॉ में. बट अगेन इफ़ यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, दो ही चीज़ हो सकते हैं यार लॉ में, या तो तुम टॉप पे चले जाओ या तो तुम पूरे बॉटम पे चले जाओ. बीच का कुछ नहीं होता हमारे यहाँ. ये फील्ड में बीच वाले लोग का ना कोई काउंटिंग नहीं है. कहीं ना कहीं 5 से 6 साल में तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि अब तो मेहनत करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. यू कैन डू या तो बहुत ज़्यादा मेहनत, और यू कैन जस्ट पीछे हट के आप फिर दूसरे फील्ड पे डेविएट करते हो. यही होता है, यही दो चीज़ें होती है अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो. याद रखना ये वीडियो आई एम जस्ट मेकिंग फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स. ये सेकंड थर्ड जनरेशन वालों के लिए नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव पीपल हु आर देयर टू गाइड देम. दिस इज ओनली फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम एन एवरेज कॉलेज एंड हु आर लाइक फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, और उनके घर पे कोई है नहीं ऐसा कि उनको बता सके. सो it's not a bad option if you are very like if you're very hardworking. I'm not even saying that you have a lot of like knowledge या फिर आपके पास बहुत आप बहुत intellectual हो. I'm not even talking about that. अगर आप में capability है, if you have that potential that you can read a lot, study a lot, आपको timing नहीं देखना होता when you are in law कि आप सुबह पढ़ रहे हो तो शाम में नहीं पढ़ रहे हो. दिस डज नॉट वर्क लाइक दैट. दिस फील्ड विल नेवर वर्क लाइक दैट. आपको 24/7 अपने आप पे काम करना पड़ता है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए. हाँ, लेकिन एक बार अगर आप आगे बढ़ जाते हो, यू गेट समथिंग विच यू वांटेड, फिर उसके बाद यार पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है, एवरीथिंग. एंड ऑफ कोर्स इज जुडिशरी यार, मतलब ये तो 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट का एक पिलर है, तो मेहनत तो चाहिए ना यहाँ पे. सो आई विल से कि इफ़ यू वांट टू, अगर आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए फर्स्ट जनरेशन हो के एंड कमिंग फ्रॉम एन एवरेज कॉलेज, मत आओ लॉ में. तुरंत यहाँ पे बहुत जल्दी आपको पैसा मिलेगा नहीं. इवन इफ़ यू आर गोइंग इनटू कॉर्पोरेट, टाइम लगेगा, 4-5 साल तो टाइम लगेगा. अनटिल अनलेस आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कोई Tier 1 कॉलेज क्रैक करते हो, दैट विल अगेन डिपेंड ऑन योर 5 years का हार्ड वर्क. ये पहला चीज़ मैंने बोल दिया. सेकंड, अगर आप अच्छे कॉलेज से पीजी कर रहे हो, आप यूजीसी भी क्वालिफाई कर लेते हो, अगेन आपका अकेडमिया में अच्छा खासा वहाँ पे स्कोप है. रिसर्च में अगर आपको इंटरेस्ट है, अगेन देर इज़ स्कोप. मेहनती लोग के लिए लॉ में बहुत स्कोप है. बट पीपल हु आर थिंकिंग कि बस एक डिग्री के लिए कर लेते हैं, law does not have scope and does not have place for such people. And I will be very brutally honest over here कि law will never favor a person who is not hardworking. Simple like that. अच्छा लगे बुरा लगे, this is just unfiltered thing. And yes, बाकी totally up to you. पैसा है तो बहुत अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो, एंड जाओ. पैसा है तो उसको यूज़ करो अच्छे जगह पे. गुड प्राइवेट कॉलेजेस आर देयर इन इंडिया, आप जाओ उसमें. एंड इफ़ यू आर क्रैकिंग अ गुड NLU, that's the बेस्ट थिंग यू कैन डू. मतलब अगर NLU मिल गया तो फिर तो आँख बंद करके जाओ. और NLU टैग डज मैटर, ठीक है. बाकी और जो क्वेरीज होंगे, आई हैव लाइक शॉर्ट लिस्टेड दीज 10. एम लाइक बहुत सारे क्वेरीज थे, बट आई हैव मर्ज दीज की मतलब एक एसेंस में मैं वीडियो बनाऊँ, वरना बड़ा लंबा हो जाता वीडियो. बाकी आई एम ऑलरेडी देयर फॉर एवरी लाइक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है इस फील्ड, इस चीज़ में, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, कोई भी लॉ नहीं समझ आ रहा है, you can easily reach out on my Instagram ID and I will be there also. I just want कि the upcoming generation is very much aware कि चल क्या रहा है. I just don't want them to come here and then expect a lot of things out of law. Expectations मत रखो ज़्यादा,
ठीक है, आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को कैसे फुलफिल करते हो, सिंपल एज दैट। एंड येस, डू द हार्ड वर्क, आप अपना काम करो, चूज़ वाइजली आपको खुद के लिए क्या चाहिए, एंड देन चूज़ लॉ। And yes, this is it for this video, and if you like my video, please like, share, subscribe to my channel, and stay tuned for more such videos. Bye bye, take care.